दिल्ली ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਸੂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਾਹਿਬ और सब तो पहले अमर चंद जी की लग रहा है कि दिल्ली दी सड़कों से अज पूरी तरह वक्त पे प्यार नजर आ रहा है कि स्ट्रगल कितों तक जाएगा। नवी मलकन की खबर सामने मिलती है इस सरकार की वो पिछले जा इनके मंत्री बड़े खुश होकर बड़े नारे ला रहे गुरुद्वारे मलकन मसूद पढ़ के गुरुद्वारे ढा गए उस अलावा गुरुद्वारा भी ढाया हुक्म भी सी वो नहीं बन के नकामियां जो कृतियां जो साडे समाज के दबे कुचले समाज के नित नवा मतलब कि लैके आते हुक्म वो अगर अपनी मंशा जी नहीं करोगे तो दूर सुनाओ जी भी मेरे नाल सुनाओ जी की कहना चाहोगे सोशल वालों दिल्ली जथा लेके डॉक्टर रीतू सिंह के हक जी आने वाले दिनों के भी ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਰਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਲਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ और स्टेटा की जो जाके बोलिया जा रहा और लोगों को गुमराह करने की साजिश इस करके ये संघर्ष है उन्नी देर तक खत्म नहीं होगा दिल्ली में संवैधानिक हक अपना लेके और उस क्रिमिनल प्रिंसिपल सिखा के अंदर सरकार को देना नहीं पड़ेगा और उन्होंने देना पड़ेगा इस जिमें कि समाओ साहब ने कहा पंजाब के अंबेडकर ऊर्जा भवन से सारिया जथेबंदियों सारिया सभावां बहुत जल्दी बुला के असीं एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि सारिया जथेबंदियां जिहड़ियां वो इत्थे पहुंचण वध तो वध लोग पहुंचण क्योंकि ये जिहड़ा संघर्ष आ ये आने वाली जनरेशन लई आ ना कि रीतू सिंह लई आ रीतू सिंह चाहे डॉक्टर रतन लाल जी जिवें कि अज बोले और डॉक्टर रतन लाल जी जिवें कि भवन ते जाके कह चुके हैं बेशक इंसाफी हो रही है लेकिन आने वाले समय के बेइंसाफियां उदों रुकनियां है जो साडा एक इहो जिहा जन अंदोलन खड़ा हो जाऊगा और प्लेटफार्म खड़ा हो जाऊगा जिथों असीं सारियां ही बेलगाम जिहड़ी राजनीति हो चुकी उन्होंने नत्थ पाउण लई असीं इन्ने सक्षम हो जावांगे इन्ने समर्थ हो जावांगे कि जिहड़े अज साडे लोग सरकारों के बैठ के काम हो रहा और वो लोग कर की रहे उन्होंने एक मिनट भी जो बहन का अधिकार नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब ने सीटा लैके तुम पार्लीमेंट के बैठे हैं राज सभा बैठे हैं विधान सभा बैठे हैं लेकिन साडियां बच्चियां दे नाल जिहड़ा बेइंसाफी हो रही है तुसीं उत्थे कद लिए बैठे
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲਗਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਲਈਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਉ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 96 ਕਰੋੜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਕਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਤੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 100 ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ 84 MP ਬੈਠੇ ਆ, 47 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ST ਦਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ MLA ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਲਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ नौकरी नहीं चाहिए। भीम आर्मी से मेरे भाई जुड़े हैं। सर कहाँ से हो आप और आज दिल्ली में कैसे आना हुआ? मैं तो पहले दिन से ही आ रहा हूँ जब से ये धरना लगा है। आज 72वां दिन है और ये गूंगी बहरी सरकार, ये RSS और संघ की सरकार एक मुलजिम को बचाने में लगी हुई है। जैसे ब्रजभूषण को बचाया था, कुलदीप सेंगर को बचाया था, जितने अपराधी हैं उनको सबको बचाने की वॉशिंग मशीन है मोदी जी। और नॉन बेलेबल की सारी धाराएं लगी हुई हैं सविता रॉय के ऊपर, लेकिन पुलिस भी मजबूर है। पुलिस के हाथ पता नहीं कैसे बंधे हुए हैं। पुलिस क्यों मजबूर है ना? पुलिस तो गृह मंत्री के अंडर है और गृह मंत्री का रिकॉर्ड आपको पता ही है। प्रेशर दिल्ली पुलिस कभी प्रेशर में काम नहीं करती थी और खासकर 19 के बाद ये RSS के अड्डे बन गए थाने भी। FIR होने के बाद भी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई सर? इसमें क्या क्यों नहीं? क्यों? वो तो पुलिस कमिश्नर बताए, यहाँ का SHO बताए, ACP बताए, नॉन बेलेबल सेक्शन लगी हुई है सारी की सारी। और वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से, SC कमीशन के ऑर्डर से उन्होंने सारा केस को रीड आउट करने के बाद FIR लॉन्च हुई है। उसके बाद नोट अरेस्ट का चार्जशीट दे दी कोर्ट के अंदर, गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। तो ये क्या है? ये क्या समान कानून है सबके लिए? प्रोफेसर रतनलाल जी ने एक वर्ड बोला था, या छावनी बना दिया था पूरे दौरान यूनिवर्सिटी को और रात को उठा लिया था उनको, हालांकि कुछ भी नहीं था उस केस में। और सेम डेट में जो है उनकी बेल होगी।
उनका प्रमोशन रोके हुए है, उनको बाहर नहीं जाने दिया गया, बाहर जाना था स्पीच देने के लिए, बाहर नहीं जाने दिया गया, परमिशन नहीं दी, किताब लिखने के लिए छुट्टी मांगते छुट्टी नहीं देते हैं। ऐसा दमनकारी शासन आज तक भारत में नहीं था। 2014 से पहले भारत सरकार होती थी, लेकिन 2014 के बाद इसको कह रहे हैं नया भारत, ये मोदी सरकार है। इसका मतलब एक आदमी की सरकार है। अशोक सतम को हटा के इन्होंने सिंगौर रख दिया वहां। ये आपको कोई घोषणा थोड़ा करेंगे, ये सिंबॉलिक आपका प्रजातंत्र खत्म हो चुका है 28 मई को। नहीं, क्या लगता है भविष्य में, क्या लगता है इस भविष्य आंदोलन में को? इसका इलाज ये है कि जितने हमारे बहुजन समाज के ST ST OBC के जितने लीडर हैं, वो सारे एक झंडे के नीचे आकर के कॉमन एजेंडा बनाएं और इनको जड़ से उखाड़ कर फेंके, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा। मेहरबानी। आज दिल्ली में कैसे आना हुआ? मैं वैसे रहने वाला तो उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर का हूँ, लेकिन रहता हूँ दिल्ली में ही, त्रिलोकपुरी विधानसभा में रहता हूँ और वहाँ से आया हुआ हूँ। तो मैंने सुना कि जो है जुर्म तो बहुत होते आ रहे हैं, जुर्म तो बहुत होते आ रहे हैं, लोगों को, कुछ लोगों को सहने की आदत बन गई है, जुर्म सहने की आदत बन गई है। नहीं तो अगर संघर्ष करने की बात आती तो संघर्ष करते, लेकिन इसी संघर्षशीलों में यही तो बात है। ये बहुजन जो है आपस में लड़ने में बड़ा तेज है, जो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं और अपने में लड़ने के लिए बिल्कुल एकदम यहाँ तक कह देते हैं लोग कि हम तुम्हें खरीद लेंगे। अरे भाई खरीदना क्या है जय भीम भाई, खरीदना क्या है? खरीदना नहीं है भाई, खरीदना तो और चीज खरीदो, लेकिन समाज के हित में संघर्ष करो। आज हम कहते हैं 85% के लोग हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, 131 पार्लियामेंट में हैं, एससी और बैकवर्ड के लोग 80 वो है कहाँ? वो लोग जो है वो लोग तलवे चाट रहे हैं अपने जातियों को बेच करके अपनी। अरे यहाँ तक उनके बाप का मर्डर हो गया, उनके बाप का मर्डर हुआ, वो MP बने फिर रहे हैं, दुश्मनों के खेमे में जाकर के MP बने फिर रहे हैं। तो क्या संघर्ष करेंगे? केवल बहुजन समाज करते रहेंगे, लेकिन वो संगठित नहीं होंगे। अगर संगठित हो जाएं तो ये चुटकियों में साहब कांशीराम जी कहते थे, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बोला था साहब ने कि अगर ये संघर्ष करते हैं तो हम 85 हैं, हम 85 हैं, वो 15 का वो जो है उनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आज संघर्ष क्या कर रहे हैं? आपस की संघर्ष कर रहे हैं। संगठित होकर के संघर्ष करें। अगर संगठित होकर संघर्ष करेंगे तो सत्ता दूर नहीं है। जो लोग कह रहे हैं दलित प्रधानमंत्री, अरे ऐसे थोड़ी दलित प्रधानमंत्री। साहब कांशीराम जी का साथ कौन से बैकवर्ड के लोगों ने दिया? बहुजन समाज के लोगों। उनसे पहले के नेता जो थे, लालू यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, शरद यादव थे, ये लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, लेकिन क्या कांशीराम जी का साथ दिया इन लोगों ने? कभी नहीं दिया। अब डॉक्टर रितु के बारे में क्या? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होकर के रितु जी के साथ हो जाए तो सवाल नहीं होता क्यों संघर्ष नहीं, हम कामयाब नहीं होंगे, हम संघर्ष में कामयाब हो गए। सर, आप कहाँ से हो? आज दिल्ली में कैसे आना? देखिए, आज अधिकार मार्च की कॉल थी। रितु 72 दिन से फैकल्टी नंबर 4 नंबर गेट पे वो बैठी है और तमाम जो न्यायप्रिय लोग हैं उनको कॉल किया गया था कि आप आइए, ये न्याय की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। हमने भी इसमें हम लगातार बीच में आते रहे हैं, हरियाणा से, हिसार डिस्ट्रिक्ट से हैं। सवाल ये है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको पंगु बनाया जाए ताकि वो बोल ना सके, वो अपने अधिकार ना मांग सके, वो किसी की खैरात पे पलता रहे। और ये जो चीजें हैं इसको लेकर के हम लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख रहे थे ये चीज। लेकिन आज एक चीज तो महसूस हुई है कि भाई किसी तरीके से वंचितों को, पीड़ितों को कैसे बचाया जाए। हमारा राइट्स बनता है कि आज सत्ता में बैठी जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने हकों के लिए, वंचितों के हकों के लिए वो किसी न किसी मोड़ पे
उनको बहकाना चाह रही है, उनको डराना चाह रही है। सर, आप कहाँ से हो और आज दिल्ली में कैसे आना हो? मैं राजस्थान से हूं और आज दिल्ली में पिछले 72 दिन से हमारी बहन डॉक्टर रितु प्रोफेसर डॉक्टर रितु न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। स्पष्ट लिखा तो आपको दिख रहा होगा, अब न्याय नहीं, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। एक जातिवादी व्यवस्था ने एक हमारी पढ़ी लिखी एक बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेसर के साथ ये कर रहे हैं, तो हमारे आम जन के साथ आज क्या हो रहा होगा। इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं उस मेरी बहन के लिए लड़ूं। मैं बचूं या ना बचूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप राजस्थान से हो और कौन, क्या नाम है आपकी संस्था? मेरी कोई संस्था नहीं है। मेरा नाम रविंद्र डोकवा है। मैं डॉक्टर अंबेडकर मिशन में काम करता हूँ। चाहे वो साहब काशीराम का मिशन हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन हो, चाहे वो फुले का मिशन हो, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर का मिशन हो, चाहे अन्य किसी शूद्र महापुरुष का मिशन हो, एक एक हमारे लिए आदरणीय है। अच्छा, आज डॉक्टर रितु के साथ आप राजस्थान से आए हैं, क्या लग रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही? देखिए, आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है, देश का संविधान, ये कह रहे हैं खत्म करेंगे। खत्म तो नहीं कर सकते, हमारा खून बहा के खत्म कर सकते हो। जब तक हम जिंदे हैं किसी हालात में संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। एफआईआर होने के बाद जो नॉन बिल एक्ट्स लगे हैं उसके बाद गिरफ्तारी न होना, ये दिखाता है कि आरएसएस की गवर्नमेंट हम चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, जो आज़ादी में जो शहीद हुए 7,32,000 लोग, उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। 7,32,000 अगर 14,32,000 और भी होंगे तो हम बलिदान देंगे हंसते हंसते। लेकिन भाईजान, इतना वितकरा नहीं होना चाहिए। अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान के मुताबिक तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि इन लोगों के ऊपर किसी पॉलिटिकल का प्रेशर है? किन लोगों पे आपका क्वेश्चन? ये जो लोग हैं इन पर जो गिरफ्तारी का वो नहीं कर रहे, इन पे ऊपर कोई पॉलिटिकल? देखिए, जो वाइस चांसलर है वो आरएसएस का प्रवक्ता है, और जो प्रिंसिपल है वो आरएसएस की लीड करती है। उसका हस्बैंड आरएसएस का बड़ा जो प्रचारक है बिहार में। तो क्या ऐसे लोग जो है हमारे लोगों को न्याय देने देंगे? क्या ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं? इनकी हिम्मत थोड़ी है। ये तो हमारे गरीब लोग जो लोग संघर्ष करते हैं, जो अवाम की बात करते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। पीछे आपके पंजाब से, आपका चैनल पंजाब से, मैं पंजाब के लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ। क्यों करता हूँ? देखिए, पंजाब के लोग आए जिनको खालिस्तानी कहा गया, फिर भी उन्होंने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री पंजाब में जाते हैं, किसी कारणवश वो बाई रोड जाते हैं और कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री को बोल दो कि मैं सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया। क्या पंजाब के लोग प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे? कैसे कुर्बानी की बात करें तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब ने दी है। देखिए, मुझे इस बात को बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं देशवासियों को बताता हूँ। आज़ादी में से 100% में से 90% कुर्बानियाँ पंजाब के लोगों की हैं, पंजाबियों की हैं। मुझे उस बात पे फख्र है। आज भी तो पंजाब के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज नहीं दे रहे हैं क्या? 700 कुर्बानियाँ हुई, जिसमें से 25 या 22 कुर्बानियाँ हरियाणा की हैं, बाकी पंजाब की हैं किसान आंदोलन में। आज भी तो आप लगातार दे ही रहे हो ना कुर्बानियाँ, फौज में देख रहे हो। कल अग्निवीर में हमारा एक जो भाई पंजाब का शहीद हुआ, देखिए कहाँ तक ये लोग हमारे को ले गए। बहुत बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਕਿਦਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ? ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿੰਘ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਜਿਆਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਆਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਪਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਗੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कहाँ से हो सर? मैं फरीदाबाद से आया हूँ जी। जी, ये क्या लग रहा है कि जो आज ये स्ट्रगल ऋतु डॉक्टर ऋतु वालों किया जा रहा है और आखिरकार एक ना एक दिन इस स्ट्रगल का अंत जो इंसाफ पर जा रहा है, क्या आपको कैसे लग रहा है? बिल्कुल ऐसा है जी। ऋतु मैम जो ये चिंगारी जलाई है, निश्चित रूप से इसमें एक एक कड़ियाँ जुड़ रही हैं और काफ़ी दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं और ये न्याय की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे इसको और जो है ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। नहीं, अभी तक इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। दरअसल में ये शासन प्रशासन जो है ना, सारा इन्होंने कब्जा कर रखा है। करनी और कथनी में अंतर है। बहुत अंतर है। ये सिर्फ जुमलेबाज है, झूठ बोलते हैं। इन्होंने अपने लोगों को बैठा रखा है शासन प्रशासन में, इस करके जब तक इनका वो नहीं चूल नहीं हिलती, गर्दन नहीं दबती, तब तक ये कोई कार्रवाई नहीं करते। मतलब इतने सख्त धारा लगी हुई है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे पहले वो भारत भूषण जिन्होंने एथलीट लड़कियों के साथ, मतलब ऐसा क्यों होता है? आप देखिए साहब, जो ऋतु मैम तो चलो ये यहाँ पे प्रोफेसर हैं, ये पढ़ा रही थी। जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे जो महिलाएं थी जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, उनके लिए आप देखिए कि भाई उनकी लड़ाई कैसे इन्होंने दबा दिया। उनकी लड़ाई को जो है ना इन्होंने जो है ना उनके लिए दो शब्द नहीं बोले, जबकि चाय पे बुलाया, उनको चाय पिलाया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी जो है ना ये उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये न्याय की लड़ाई है। जब तक इनका वोट के चोट नहीं पहुंचती ना, तब तक ये कुछ नहीं करते। डॉक्टर रतन लाल जी इस वक्त मेरे नाल है, उन्होंने ना करते हैं गलबात। सर ये स्ट्रगल जड़ा है अभी और कितनी देर और जा सकता है, कहाँ तक जाएगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ी जाएगी। एक लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाती है, एक लड़ाई सड़क पे लड़ी जाती है और दोनों ताकत बाबा साहब के संविधान से ही आ रहा है। कोर्ट में भी मामला चल रहा है और सड़क पे इतने हजारों लोग, देख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। इसका कारण है कि पूरी व्यवस्था जो है ना वो संविधान को धत्ता बता के और मनुस्मृति के हिसाब से काम कर रही है। और क्या क्या मुद्दा है आपको पता ही है। ऋतु सिंह को निकाला कॉलेज से गलत तरीके से, मेरा भी मुद्दा है। तो लगातार इसमें चल रहा है, लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा। नहीं, एफआईआर तो हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही सर? इसलिए प्रेशर है, ये प्रेशर है पुलिस और पुलिस सरकार सबका प्रेशर है ना। आरएसएस की सरकार है ना, ये बीजेपी वालों की। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही कहा ना कि संविधान नहीं मनुस्मृति वाले लोग हैं। तो इनसे तो सड़क पे मुकाबला करना ही, आंदोलन करना ही पड़ेगा। कोर्ट में भी लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे। जी जी। एंड क्या होगा सर? एंड क्या? अब ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। क्या है? हाँ ये क्या? ओके, थैंक यू। आज दिल्ली में कैसे आना हुआ? डॉक्टर ऋतु सिंह जो पिछले 2.5 महीनों से लगी है स्ट्रगल करने, और क्या लग रहा है आपको कि वो मंजिल अभी दूर है? मंजिल दूर नहीं है, संघर्ष जारी है जी। संघर्ष जारी रहेगा जब तक मंजिल नहीं मिलेगी। कि हम बाबा साहब के हम सिपाही हैं, हम हारने वाले नहीं। कलम और दिमाग हमारे साथ है। वोट बैंक हमारा बिखरा हुआ, इस वोट बैंक को चोच में इकट्ठा करेंगे। नहीं, वो उसको कैसे इकट्ठा करेंगे बाबा जी? करेंगे इसलिए करेंगे कि जो जितने हमारे जनप्रतिनिधि गए हैं रिजर्व सीटों में जीत करके, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वो लोग सत्ता की मलाई भोग रहे हैं। उनको समाज से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि उनका रिमोट है वो उन लोगों के हाथ में जो उनको न चाहते। इसलिए अब की बात 24 में उनका बहिष्कार करेंगे। इसलिए वो प्रतिनिधि जाएंगे जो समाज का नेतृत्व करेंगे, समाज की बात कहेंगे। जैसे माननीय कांशीराम थी, बहन मायावती थी, या अन्य लोग जो हैं उदित राज, ऐसे लोगों को सिलेक्टेड भेजेंगे जो अभी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सर। एफआईआर तो बाबा साहब के खिलाफ भी हुआ करती थी, सरकारी मनुवादियों की है, प्रशासन उनका है, कमिश्नर उनका है, होम मिनिस्टर उनका है, प्रधानमंत्री उनका है। तो वो कैसे कार्रवाई करेंगे? वो अपनी सिपाही, दिल्ली पुलिस उनकी अपनी है, आम आदमी की नहीं। जो कमिश्नर साहब को आदेश में होम मिनिस्टर वही काम करेगी। मुकदमा दर्ज है, चार्जशीट पहले कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल विदाउट रिएक्शन कोई एक्शन नहीं। क्योंकि एक्शन कौन करेंगे? होम मिनिस्टर साहब करेंगे। होम मिनिस्टर साहब कहाँ से हेडक्वार्टर, नागपुर से टेलीफोन आएगा, नागपुर से टेलीफोन आएगा, तब जाके होम मिनिस्टर कुछ काम करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें बहुत कर रहे हैं और पिछले 2014 से कर रहे हैं,
लेकिन अब तो बेटी पड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो मतलब शिकार है, ज्यातिवाद का शिकार है, वो क्या कैसे देखते हैं? वो इसलिए देख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पर्दे की बातें हैं, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। बेटियों में क्वालिटी है, उनमें भी एक वैरायटी है कि ये बेटी किस समाज से आती। बेटियां तो धरना दे रही थी, पहलवान बेटियां, वो भारत की नहीं, वो भारत की लड़कियां नहीं थी, ये भारत की बच्चियां नहीं थी। जो मेडल लगे तो भारत की थी वो, और जब धरने में बेटी किसकी होगी? वो जाटों की हो गई। तो ये क्या है? भीतर कुछ और बाहर कुछ और है। खरबूजा होता है, बाहर रंग दिखा, अंदर इकट्ठा होता है। इनका गिरगिट जैसा रंग है। ये वोट बैंक के लिए इनको लुलुपाप देते हैं, लुभाते हैं, लेकिन वक्त पर पीछे हट जाते हैं। मेहरबानी सर, बहुत धन्यवाद। जय भीम। हमें नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, ये कहना है। न्याय कब मिलेगा? मैं बात आपका नाम? मुझे ये ना पता है कि आजमगढ़ से हूँ, दिल्ली में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ और हमें हमारी बेटी ऋतु के लिए नौकरी मिलना चाहिए और हम ये चाहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर न्याय मिल जाए हमारी बेटी को तो हम संतुष्ट होंगे और हमारी बच्ची संतुष्ट होगी। और हमारी डॉक्टर ऋतु सिंह हमारी अपनी अकेली बेटी नहीं है, ना अकेली पंजाब की बेटी है, वो पूरे देश की बेटी है। उसके लिए पूरा देश जाग रहा है और पूरा देश संघर्ष कर रहा है और पूरा देश हर तरह से तैयार है, तन मन धन से। कल को अगर कोई क्रांति होती है उसके लिए भी हम हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। हमारी ये 56 वर्ष हो चुकी है, 57 पूरा होने वाला है, लेकिन हम इस एज में भी पूरा ऐलान करते हैं कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। मेहरबानी सर, मेहरबानी। मैं दिल्ली नगर से हूँ। आज दिल्ली में जो स्ट्रगल सड़कों पे नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी महमूद पाशा जी से बताया गया कि कोर्ट द्वारा कंप्लेंट हो गई है जी, और इन प्रिंसिपल को सजा होनी होके रहेगी। लेकिन एफआईआर तो हो चुकी है, गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर ये स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें ऐसा ना, ये मनवादी सरकार है और मनवादी सरकार जो है इनकी नजर में बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। ये सरकार जो है गुंडी लुच्ची बदमाश गुंडों की सरकार है ये। इन्हें सिर्फ लूटना खसोड़ना आता है, मारना आता है, बहन बेटी के साथ रेप करना आता है और इन्हें सही काम कुछ नहीं आता है। और ऐसा भी कहते हैं कि ये सरकार है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये सरकार चाहती है संविधान बदला जाए जी, लेकिन हम बहुजन समाज इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे जिस दिन इन्होंने संविधान छेड़ दिया। नहीं, कैसे बजाएंगे सर? आपकी यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है सर। आपका कहना ठीक है, यूनिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है जी। यूनिटी धीरे धीरे समाज जाग रहा है और जैसे जैसे समाज जाग रहा है वैसे वैसे इनकी खड़िया जो है ढीली होती जा रही है, इनकी जितनी भी गर्मी है वो निकल रही है। इनको अब जो है हालत पतली हो गई है इनकी, जिस तरह से बहुजन समाज जाग रहा है इतनी पतली हो गई है, मतलब इनको कुल मिलाकर डर लगने लग गया है। बहुत मेहरबानी।